Hello students, in this video we are going to discuss about derivatives of composite functions. This video is a continuation of previous video. See, differentiate the following with respect to x. The first sum, अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. What is question number 2? Differentiate the following with respect to x. The sub question first is cos of x square plus s square, or we can say that if y is equal to cos of x square plus s square, then find out dy by dx. Here it is given that y is equal to cos of x square plus s square. We can say that since, or it is given that, or as, means y is given. You have to observe this, y is a cos of something. So you have to differentiate directly, that is differentiate on both sides with respect to x. You will get dy by dx is equal to derivative of RHS. What is derivative of y? That is dy by dx is equal to derivative of RHS. Now you have to observe the RHS side. D by dx of cos of x square plus s square. What is derivative of cos x? Minus sin x. So derivative of cos of f of x is equal to minus sin of f of x into derivative of f of x. So the derivative of cos of x square plus s square is nothing but minus sin of x square plus s square into derivative of angle. So derivative of x square plus s square is nothing but derivative of x square plus derivative of s square, means taking separate derivative. So the first part keep as it is, means minus sin of x square plus s square keep as it is, into derivative of x square is 2x plus 0. So directly you have to write minus 2x into sin of x square plus s square. In this type, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, टैन ऑफ समथिंग, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. तो हम अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. तो सेम टाइप के क्वेश्चन है. देखो, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, देन फाइंड आउट dy by dx, tan of log x, and tan of something is there. What is angle here in question number 3? Log x. Similarly, cosec of under root of cos x. Sometime cosec of एक्स क्यूब माइनस 1 भी आ सकता है. यानी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल. तो ये सभी क्वेश्चंस में आपको जर्नल फॉर्मूलेज लगाना है. तो जर्नल फॉर्मूले क्या है? साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स. इस तरीके से जर्नल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. वन मोर हियर क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स. ओके, ये तो सबसे इजी आसान क्वेश्चन है, आप यू कर सकते हैं इसे. नेक्स्ट पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू टैन ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स. तो यहाँ पर देखेंगे कॉम्पोजिट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो एंगल क्या आ गया? साइन ऑफ कॉस एक्स, टैन ऑफ समथिंग. तो यहाँ पर y दिया गया है. इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू टैन ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस बिकॉज ऑफ इट इज़ टैन ऑफ समथिंग. तो यहाँ पर हम टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर एच एस इज इक्वल टू, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स? सेक स्क्वेयर एक्स. डेरिवेटिव ऑफ टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? सेक स्क्वेयर ऑफ एफ ऑफ एक्स. यानी कि जो भी एंगल होगा, टैन के आगे जो भी एंगल है वो एज इट इज कैरी करना है. Derivative of tan x is sec square x. So derivative of tan of sin of cos x is equal to sec square of sin of cos x into derivative of angle. What is the angle here? Sin of cos x. तो यहाँ पे हमें अभी derivative of sin of cos x सिंप्लीफाई करना है. ये जो फर्स्ट फैक्टर है, RHS का जो फर्स्ट फैक्टर है sec square of sin of cos x, वो एज इट इज कैरी करेंगे इनटू, यानी सेकंड फैक्टर d by dx हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. बिकॉज ऑफ डी बाई डी एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑपरेटर है. तो आवर स्टेप इज सेक स्क्वेयर ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, बट एंगल इज नॉट एक्स हियर. सो अगेन मल्टीप्लाई विथ एंगल.
that is into day root of cos x. What is day root of cos x? Minus sin x. So whole term become negative, that is minus sin x into sec square of sin of cos x into cos of cos x. This is final answer. Understood? Now next part is next question, similar type of question. Differentiate the following with respect to x. Again it is question number 2. Continue question, that is question number 7. cot क्यूब x, टेक्स्ट में जो दिया गया है कॉट क्यूब ऑफ समथिंग, यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो हम सबसे आसान पहले क्वेश्चन करने वाले हैं कॉट क्यूब एक्स. सो वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, इफ y इज इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स. ओके, यानी मोस्टली क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से आएगा, इफ y इज इक्वल टू समथिंग देन फाइंड dy बाई डी एक्स. ओके, एज y इज इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स, this is also simple form, that is cot of something means this one we have to convert in f of x raised to n. So directly you have to differentiate this with respect to x. डे रूट ऑफ y कैसे डिनोट करते हैं हम? dy बाई डी एक्स से. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डे रूट ऑफ आर एच एस. व्हाट इज आर एच एस? cot क्यूब x. You know cot square x, that is cot x into cot x. Okay, we can write in this way, that is cot x the whole square. Similarly cot cube x is nothing but cot x into cot x into cot x. तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं cot x the whole cube. So dy by dx equal to day root of cot x the whole cube. अभी कौन सा टाइप दिख रहा है आपको? फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, दैट इज वेरिएबल रेस्ट टू नंबर. तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेरिएबल रेस्ट टू नंबर फॉर्म. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड फार्मूली एज वेल एज जनरल फार्मूली डिस्कस किए थे, तो उसमें एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन फार्मूला अप्लाई करेंगे. मीन्स वी ट्रीट कॉट एक्स एज एफ ऑफ एक्स इन योर माइंड, देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला डे रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन. व्हाट इज डे रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन? It become n into f of x raised to n minus 1 into day root of base function. So it become means derivative of y, that is dy by dx is equal to 3 times cot square of f of x into day root of base function. Okay, according to f of x raised to n formula, it become 3 into cot x raised to 3 minus 1. How much is that? 2 into day root of cot x. क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है? बेस फंक्शन इज नॉट x, इट इज cot x. तो x नहीं, फंक्शन ऑफ x है, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे डे रूट ऑफ दैट फंक्शन. अगेन यू हैव टू सिंप्लीफाई डे रूट ऑफ cot x. व्हाट इज डे रूट ऑफ cot x? दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वेयर x. तो द फाइनल आंसर बिकम माइनस 3 इंटू कॉट स्क्वेयर x इंटू कोसेक स्क्वेयर x. दिस इज लास्ट आंसर. Okay, now next sum is extra question, same type. If y is equal to cot cube of log x, means angle is log x, not x. Previous was very simple, cot cube x, just I change the angle here. Instead of x, it is log x, maybe tan x, maybe x cube, maybe log of x cube, maybe tan inverse of x raised to 9, whatever may be. तो यहाँ पर दिया है इफ y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है क्योंकि आपको आसान से समझ में आए, तो प्रैक्टिस के तौर से हमने आसान क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट किए. हियर y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग एक्स, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डे रूट ऑफ आर एच एस. अगेन यू हैव टू राइट dy by dx equal to d by dx of cot of log x the whole cube. Same type. What is cot cube x? That is cot x into cot x into cot x means cot x the whole square. Here I use the angle log x. हम यहाँ पर angle log x यूज कर रहे, तो इसी तरीके से लिखेंगे हम cot of log x the whole cube. ओके, अभी ये कौन सा टाइप आ गया? वेरिएबल रेस्ट टू नंबर फॉर्म. तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन फार्मूला. तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे बेस फंक्शन कॉट ऑफ लॉग एक्स एज अ एफ ऑफ एक्स, देन यू हैव टू अप्लाई डे रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन फार्मूला. इट बिकम एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन माइनस 1 इंटू डे रूट ऑफ
f of x. So dy by dx equal to 3 times cot of log x the whole square into the root of cot of log x. तो यहाँ पर बेस फंक्शन क्या है? cot of log x. यहाँ पे अभी जो फर्स्ट पार्ट है यू हैव टू कीप एज इट इज, सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव लेना हमें. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ समथिंग? माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ समथिंग. तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज माइनस, और you have to write in bracket, means 3 cot of log x the whole square into what is derivative of cot? Minus, into bracket minus cosec square of log x. but here cot का एंगल क्या दिख रहा है आपको? log x, not x. so you have to multiply derivative of log x and it is nothing but minus 3 upon x into cot square of log x into cosec square of log x. ये कैसा है? what is derivative of log x? 1 अपॉन एक्स. तो 3 इंटू 1 अपॉन एक्स दैट इज 3 अपॉन एक्स, और ये माइनस साइन हम आगे लगा देंगे. ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस 3 बाई एक्स इंटू कॉट स्क्वेयर ऑफ लॉग एक्स इंटू कोसेक स्क्वेयर ऑफ लॉग एक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक. इफ वाई इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. देखो क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड होते गए. अभी यहाँ पर जो दिया है ये क्वेश्चन दिया था कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. जो प्रीवियस दो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा बनाए, नहीं आपको आसान से समझ में आना चाहिए. यहाँ पर एंगल कुछ भी होने दो. ओके, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ओके, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यू विल गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर एच एस. यही सम को भी हम सेम तरीके से लिखेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल क्यूब. यू हैव टू अप्लाई सेम रिजल्ट हियर, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ ये कौन सा टाइप आ गया? वेरिएबल रेस टू नंबर फॉर्म आ गया. तो ये जो बेस फंक्शन है, व्हाट इज बेस हियर? कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. इसे हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे, दैट इज ट्रीट कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब एज एफ ऑफ एक्स इन योर माइंड. then here we have to apply derivative of f of x raised to n formula. You will get dy by dx equal to 3 into cot of log of x cube bracket raised to 3 minus 1, that is 2, into derivative of base function. What is base function? Cot of log of x cube. So you have to differentiate second bracket here. Now first keep as it is, 3 into cot of log of x cube into what is derivative of cot? Minus cosec square of same angle. That become minus cosec square of log of x cube. What is the angle here? Log of x cube. तो उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ओके, अभी ये दो फैक्टर्स है यहाँ पे, जो दो टर्म है उसको एज इट इज कैरी करेंगे हम. डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब लेना है, उसे सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज ऑफ डी बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव ऑपरेटर. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? 1 अपॉन एक्स. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, दैट इज माइनस 3 इंटू कॉट स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. हियर कॉट स्क्वेयर हैविंग निगेटिव साइन, तो हम ये माइनस साइन सबसे पहले लिखेंगे, तो ये होल टर्म निगेटिव हो जाता है, होल टर्म बिकम निगेटिव. दैट इज माइनस 3 कॉट स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. क्योंकि log x नहीं है, log ऑफ एक्स क्यूब है, मीन्स log ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो 1 अपॉन एक्स क्यूब लॉग के आगे जो भी रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाता है. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ log ऑफ एफ ऑफ एक्स? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? 3x स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो स्टार्टिंग है 1 2 ये 3 टर्म है, तो 3 फैक्टर एज इट इज कैरी करेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लिखना है, खाली एज इट इज ये टर्म कैरी करना है हमें. तो पहला आ जाएगा माइनस 3 कॉट स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? 3x स्क्वायर. तो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. अभी देखो यहाँ पे रेड कलर में दिया है एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, तो सिमिलर टर्म गेट कैंसल. क्या बचा यहाँ पे? डिनोमिनेटर में x, डिनोमिनेटर हैविंग इट कंटेन x ओनली. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिमिलर फैक्टर गेट कैंसल. तो यहाँ पे देखो माइनस 3 इंटू 3, हाउ मच इज दैट? माइनस 9 अपॉन एक्स. द फाइनल आंसर विल बी माइनस 9 अपॉन एक्स
इंटू कॉट स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे डबल माइनस साइन नहीं हो, सिंगल माइनस साइन है, एक्चुअली वो डबल सिलेक्ट हो गया है, माइनस, इट इज माइनस, होल टर्म बिकम माइनस, माइनस 9/x कॉट स्क्वेयर ऑफ log of x cube into cosec square of log of x cube. This is our final answer. Now next sum is again extra question, same type, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी पावर ले लो, एंगल इज ऑल्सो एनीथिंग, तो सेम मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर tan⁴ पे, tan⁴ ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। प्रीवियस क्या था, log ऑफ एक्स क्यूब, log ऑफ एक्स क्यूब के बजाय अंडर रूट ले लिया, तो यानी एंगल कुछ भी हो सकता है, एनी फंक्शन, यू हैव टू अप्लाई जनरल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sin⁶ ऑफ अंडर रूट एक्स, देन फाइंड dy/dx। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू cos स्क्वेयर ऑफ log ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पर cos स्क्वेयर का एंगल क्या आ गया, log ऑफ x स्क्वेयर प्लस 7। तो दिस फंक्शन यू हैव टू राइट cos ऑफ log ऑफ x स्क्वेयर प्लस 7 द होल स्क्वेयर। तो सबसे पहले f ऑफ x⁴n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके, देन cos ऑफ f ऑफ x अप्लाई करेंगे, देन log ऑफ f ऑफ x। तो इस तरीके से ये भी आसान क्वेश्चन है, 4th-5th स्टेप में आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, सेक ऑफ, ये तो बहुत ही आसान है, सेक ऑफ tan ऑफ x⁴ प्लस 4। तो सेक ऑफ f ऑफ x डायरेक्ट पहले अप्लाई करेंगे, सबसे पहले सेक ऑफ f ऑफ x, क्योंकि सेक का पावर एक ही है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, सेक ऑफ द सेम एंगल इंटू tan ऑफ सेम एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x⁴ प्लस 4। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, cos ऑफ tan ऑफ x⁴ प्लस 4, देन 15, क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, देन फाइंड dy/dx। यहाँ पर अभी एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, रूट एक्स, ओके, मीन साइन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स। तो एंगल कुछ भी होने दो, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। वन मोर, y इज इक्वल टू tan स्क्वेयर ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो एक 2-3 क्वेश्चन भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये टाइप एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो वेरिएबल रेस टू नंबर, ये पहले सबसे पहले समझना है, मीन्स f ऑफ x⁴n फॉर्म। उसके बाद साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, टैन ऑफ समथिंग, कुछ भी क्वेश्चन आने दो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आप भी खुद बना सकते हैं, आपको खाली मेथड समझना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, डिफ्रेंशिएट अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पे y वगैरह कुछ दिया नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे लेट y इज इक्वल टू, और सपोज और कंसिडर, इस तरीके से लिखेंगे, मोस्टली हम लेट लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू गिवन सम। फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द गिवन सम। इसमें क्या दिख रहा है आपको, u प्लस v फॉर्म दिख रहा है हमें, मीन्स y इज इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म दिख रहे हैं, सम ऑफ 2 फंक्शंस है। तो यू हैव टू अप्लाई फंडामेंटल रूल्स, ऑलरेडी हमने वो टाइप एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके। u प्लस वी होगा तो क्या करना है, टेकिंग सेपरेट डेरिवेटिव, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस डायरेक्टली। ओके, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो स्टेप नहीं लिखा तो भी चलता है, यानी समझना चाहिए कैसे करके वो हम वो स्टेप लिखते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू कैन राइट डायरेक्टली व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। नाउ by taking separate derivative, derivative of under root cos x plus derivative of under root of cos of root x. Okay, what is under root x? 1/2 root x. What is under root of f of x? 1/2 under root f of x into derivative of f of x. तो वो जनरल फॉर्म से ये आंसर आ गया 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f of cos x into derivative of cos x. Similarly, you have to apply same result here, 1/2 times under root of cos of root x into derivative of inside function, that is cos of root x. What is derivative of cos x? Minus sin x. So the next step is dy/dx equal to 1/2 times अंडर रूट cos x, कीप एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स
प्लस साइन एज इट इज़ 1/2 अंडर रूट कॉस ऑफ रूट एक्स, ये भी एज इट इज़ रखेंगे, इंटू डेरिवेटिव जहाँ पर डी बाई डी एक्स है उसी को ऑपरेट करना है हमें, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ कैरी करते चलना है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, यहाँ पर अभी एंगल क्या आ गया, एक्स नहीं है रूट एक्स है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स लेना है। सो द लास्ट स्टेप इज माइनस साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 times root x. This is final answer. Okay, or you can take common here, you can simplify this, minus sine minus 1/2 take common or keep as it is. Okay, here 2 into 2 4, you have to simplify this or keep as it is. These two steps are equivalence. If you are understanding my videos, then subscribe my channel so you will get notification of new videos. So here y is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, then find dy by dx. तो सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, or we can ask in this way, if y is equal to 3 raised to y is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, then find dy by dx. Here y is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. So you have to differentiate this with respect to x, because of this is very simple sum. This one is depends on e raised to f of x formula. Okay, so dy by dx equal to derivative of RHS side. Suppose we assume that 3 sin square x minus 2 cos square x as f of x, then by using the formula derivative of e raised to f of x, it become e raised to f of x into derivative of f of x. Here ये जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, एकदम आसान फॉर्मूला है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स? ई रेज टू एक्स एज इट इज रखेंगे, यू हैव टू कीप एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर. ओके, तो डिवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ई रेज टू 3 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स. ये जो फैक्टर है, ये जो गिवन सम है, इसको एज इट इज रखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर. ओके, so dy by dx equal to, see again you see the observe this second factor. First factor keep as it is, second क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u minus v फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स. ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाय टेकिंग सेपरेट डेरिवेटिव. ओके, तो 3 कांस्टेंट नंबर है, यू हैव टू राइट आउटसाइड डेरिवेटिव ऑपरेटर, इट बिकम dy by dx इक्वल टू e रेज टू 3 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू ब्रैकेट 3 पहले लिखेंगे हम बिकॉज ऑफ इट इज कांस्टेंट नंबर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स. सिमिलरली -2 यू हैव टू राइट आउटसाइड द डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स. ओके, तो सेम ये जो स्टेप है हम नेक्स्ट स्लाइड में कैरी कर रहे हैं क्योंकि आपको आसान से समझ में आएगा. सी dy by dx इक्वल टू e रेज टू 3 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू सेम स्टेप यहाँ पे लिखा है हमने 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. यहाँ पे भी हम क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन फॉर्मूला. ओके, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स? 2 cos x into derivative of base function cos x. What is derivative of base function? What is derivative of cos x? minus sin x. तो होल टर्म बिकम पॉजिटिव हो जाएगा वो. तो देखो यहाँ पे ये जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर एज इट इज लिखना है, सेकंड फैक्टर हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इज नथिंग बट 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इट बिकम 6 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. -2 कीप एज इट इज into derivative of sin cos square x is nothing but 2 cos x into derivative of cos x is minus sin x, then become 4 sin x into cos x. तो यहाँ पर हम दोनों का एडिशन करेंगे, 6 sin x into cos x प्लस 4 sin x into cos x. ये क्या हो जाएगा, हाउ मच इज दैट, 10 टाइम्स sin x into cos x. देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 10 sin x into cos x into e रेज टू 3 sin square x माइनस 2 cos square x. अभी यहाँ पे जो 10 है हम इसे स्प्लिट करेंगे in terms of 5,
because of we have one formula, 2 sin x into cos x is equal to sin 2x. So you have to split 10 in terms of 5 into 2. तो 5 into 2 sin x into cos x, यहाँ पे जो 2 sin x cos x फैक्टर दिख रहा है, it becomes sin 2x. That is nothing but dy by dx equal to 5 times sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos x. This is final answer, right? Next one, if y is equal to 5 raised to sin cube x plus 3, then find dy by dx. ये भी सेम टाइप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. ओके, instead of e I use 5 here, right? Since y is equal to 5 raised to sin cube x plus 3, so you have to differentiate directly with respect to x. Therefore dy by dx equal to day root of RHS. Okay, here we treat sin cube x plus 3 as f of x in your mind. Then you have to apply day root of a raised to f of x formula. That is, what is day root of a raised to f of x? A raised to f of x keep as it is into log a into day root of power. That's it. So dy by dx become, ये अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 जो भी गिवन सम है वो एज इट इज लिखेंगे, इट बिकॉज ऑफ इट इज नंबर इज टू वेरिएबल, तो जो गिवन सम है उसे एज इट इज लिखेंगे इनटू लॉग ऑफ बेस नंबर हियर, व्हाट इज बेस 5, दैट इज लॉग ऑफ 5 इनटू डे रूट ऑफ पावर अकॉर्डिंग दिस प्रीवियस फॉर्मूला. ओके, अभी यहाँ पे जो है 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5, इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे एज इट इज कैरी करना है. ओके, तो सेकंड फैक्टर हम सिंप्लीफाई करेंगे. सेकंड ब्रैकेट जो दिख रहा है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3. ओके, क्योंकि डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑपरेटर है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, टेकिंग सेपरेट डेरिवेटिव, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3. ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 raised to sin cube x plus 3 into log 5 taking separate derivative, means derivative of sin cube x plus 2 times derivative of 3. Okay, so here first factor keep as it is. What is derivative of sin cube x? 3 sin square x into derivative of sin x is cos x. Again here you have to apply f of x raised to n formula, variable raised to number formula. तो पावर x से कम होता है into derivative of sin आ जाएगा, that is cos x, plus 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 0, दैट इज 0, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5. ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सम सिमिलर टाइप, यहाँ पे हम सिमिलर टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे यानी एक्सपोनेंशियल टाइप की. नंबर रेज टू वेरिएबल और ई रेज टू वेरिएबल. तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इफ y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 2 लॉग एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. ओके, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला से आप कर सकते. नेक्स्ट है, if y is equal to e raised to x square into sin square x plus cos square x, what is the power, x square sin square x plus cos square x, ये भी e raised to f of x से कर सकते हैं आप. नेक्स्ट समय, if y is equal to 3 raised to tan raised to 7x minus 2, ओके, ये भी e raised to f of x से कर सकते हैं आप, e raised to f of x फॉर्मूला से. ओके, जस्ट यू प्रैक्टिस दिस अनसॉल्व सम्स तो आपको आसान से प्रैक्टिस हो सके. नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन फर्स्ट. इफ y is equal to log of sec x, then find dy by dx. Since, or we can say as or given y is equal to log of sec x, कितना सिंपल फॉर्म है, log of something, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, log x formula, derivative of log x formula or derivative of log of f of x formula. So directly you differentiate this, differentiate on both sides with respect to x, you will get dy by dx equal to derivative of RHS. So here we assume that sec x as f of x, then you will get derivative of log of f of x type. So you have to apply derivative of log of f of x formula, that is 1 upon f of x into derivative of f of x. ये जो ब्रैकेट लिखा है ये पिंक कलर में, ये जो फॉर्मूला दिया है ये आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं. ओके, आपको समझना चाहिए करके वो लिख रहे हैं हम. तो यहाँ पे जो है log of डेरिवेटिव ऑफ log of sec x डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. ओके,
तो व्हाट इज डे रूट ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स? 1 अपॉन सेक एक्स इंटू डे रूट ऑफ सेक एक्स। लॉग के आगे जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना है इंटू डे रूट ऑफ दैट फैक्टर और दैट फंक्शन। ओके, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट इज डे रूट ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स कीप एज इट इज, डेरिवेटिव के आगे जो भी फैक्टर है यानी डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑपरेटर है तो वही सिंप्लीफाई करना है, बाकी फैक्टर बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज कैरी करना है। दैट इज 1 अपॉन सेक एक्स कीप एज इट इज इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यहाँ पे रेड कलर्स इस्तेमाल किया हमने सेक एक्स के लिए, तो ये सिमिलर फैक्टर है तो सेम फैक्टर गेट कैंसल, वो कैंसिल होने के बाद dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? tan x। दिस इज फाइनल आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट सम, इफ y इज इक्वल टू, और फर्स्ट यू टेक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x, राइट। सेक एक्स की बजाय tan x ले लेते हैं, यहाँ पे एक दो ही क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे रहे। अगेन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एनी पॉलिनोमियल, आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल कुछ भी आ सकता है, मीन्स लॉग ऑफ समथिंग। ओके, अगर लॉग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करते, यानी उस वक्त लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। लेकिन ये तो सिंपल है, लॉग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आसान है, एफ ऑफ एक्स ले लेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस 1 को एफ ऑफ एक्स ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव तुरंत आ जाएगा, राइट। अगेन सी लॉग ऑफ 3 इंटू एक्स रेस टू 5 प्लस 4, ये भी आसान से कर सकते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला से। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये भी सिमिलर टाइप है जो पहले हमने देखा सॉल्व किया लॉग ऑफ सेक एक्स, लेकिन वहाँ पे एंगल था x। ओके, इन दैट सम द एंगल वॉज x, बट हियर इन पर्टिकुलरली एंगल इज नॉट x, इट इज ई रेस टू एक्स स्क्वेयर। ओके, एंगल कॉम्प्लिकेटेड है तो ये भी आसान से हो जाएगा। पहले सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला। सो सिंस और इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू गिवन सम लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर, यू हैव टू डिफरेंशिएट डायरेक्टली, क्योंकि क्या दिख रहा है हमें? स्ट्रक्चर क्या है? लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ कुछ भी आने दो, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हम लॉगरिथम की। जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के सम्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले अच्छे से। तो ये डायरेक्ट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्म है तो डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर, इसे हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे। ये स्टेप पे आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर we assume as it is f of x, then you have to apply derivative of log of f of x formula. What is the derivative of log of f of x? 1 upon f of x into derivative of f of x। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिखेंगे आप। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लॉग के आगे क्या है? सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर, तो इसे एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर जो है सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर सिंप्लीफाई करेंगे हम। ओके, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेटर है वहाँ पे उसके पहले। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। मान लो एक्स के बजाय एफ ऑफ एक्स आ गया है तो क्या करेंगे? सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके, तो सेम यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक? सेक इंटू टैन, दैट इज एंगल एज इट इज कैरी करेंगे हम, सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर। बट एंगल क्या है यहाँ पर? इज नॉट एक्स, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर है और डिनोमिनेटर में भी सिमिलर जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर। तो एक स्टेप ज़्यादा लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ई रेस टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर भी लिखेंगे। दैट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इक्वल टू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर? अगेन ई रेस टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज इंटू ई रेस टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ अगेन पावर, बिकॉज ऑफ पावर एक्स नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर? 2x, तो 2x हम पहले लिखेंगे। ओके,
तो फाइनल आंसर इज 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर, और इसे ऐसे भी रख सकते हैं हम, ओके, टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, और 2x पहले लिख दो। तो दिस इज, और बोथ आर इक्वलेंट स्टेप्स, ओके, लास्ट स्टेप एंड सेकंड लास्ट बोथ आर इक्वलेंट, तो वैसे भी लिखो। और 2x मोस्टली अलजेब्रिक फंक्शन हम पहले लिखते हैं, 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वेयर, ओके, log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वेयर, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला में भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके, जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज एज वेल एज जनरल फॉर्मूले वो एक्सप्लेन किए थे। दैट इज वी हैव वन फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a, ओके, उस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। और सेकंड मेथड भी है, ये यहाँ पे चेंज ऑफ बेस भी अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू सिंप्लीफाई y सिंस y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वेयर। देयर आर टू मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ बेस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यू नो log x टू द बेस a, दैट इज log x अपॉन log a, तो ये जो y है गिवन फंक्शन जो है वो आ जाएगा log ऑफ log x, व्हाट इज ये हियर ई स्क्वेयर, तो आ जाएगा अपॉन log ई स्क्वेयर। समझ में आ रहा है यहाँ पे? सी यहाँ पे जो दिया है log x, हम x एज्यूम करेंगे, ई स्क्वेयर a एज्यूम करेंगे। नाउ बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला इट बिकम log x अपॉन log a, तो y आ जाएगा log ऑफ log x अपॉन log ऑफ ई स्क्वेयर, राइट। अगेन यू हैव टू अप्लाई log m रेस टू n फॉर्मूला। व्हाट इज log m रेस टू n? n टाइम्स log m, तो ये जो पावर 2 है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन log ऑफ log x, इसको कुछ करना नहीं है अभी, न्यूमरेटर की एज इट इज, ओके, log ऑफ log x अपॉन 2 इंटू log e। व्हाट इज log e? इट बिकम 1, ओके, log e इज 1, तो सिंप्लीफाई स्टेप हो गया, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log ऑफ log x। एकदम आसान सिंपल हो गए हैं, दैट इज 1/2 इंटू log ऑफ log x। देखो कितना सिंपल है, कितना आसान फॉर्म आ गया। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x? 1/log x इंटू 1/x, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ओके, लेकिन आपको समझना चाहिए करके दो तीन स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिख कर दे रहे हैं। डायरेक्ट उसके बाद लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/log x इंटू 1/x, दैट्स इट। ये 2-3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं आपको, ओके। देयरफॉर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to x, you will get dy by d is equal to derivative of RHS, 1/2 constant you have to write outside. What is derivative of log x? 1/log x into derivative of log x, log क्या कि जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना है, and that is nothing but 1/x, okay. So you have to write dy by d is equal to 1/2 into x into log x, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, और you can keep the second step as it is, means both are equivalent, right. Now next sum is, next part देखेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस 7 टू द बेस 5, देन फाइंड dy बाई dx। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में, अनसॉल्व क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, आपका कमेंट्स पढ़ के आपको सेम डे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके।